Multi-level marketing. DXN's primary business focus is in the marketing and distribution of Ganoderma, or commonly known as Lindsay or Reishi. Listed on Bursa Malaysia in 2003 and going private in 2011. DXN is ranked as one of the top MLM companies in the world and has more than 70 branches worldwide, servicing more than 13 million registered distributors with a variety of over 200 products, distributing to more than 180 countries worldwide. The One Dragon business concept integrates our operations under our own Eco Valley for cost efficiency and economies of scale. Believing in the one world, one market concept, Dato' Lim firmly set DXN's footprint in the global marketplace. Focusing on what we do with one mind, we ensure sustainability in our core business. With the wealth from the tropical forest. The tropical climate in northern Malaysia provides the most ideal environment for Ganoderma cultivation. Dato' Lim enriches lives for the future by integrating the existing Ganoderma business to help more people get acquainted and enjoy the benefits of this miraculous herb. Freshly cut Ganoderma is processed as a raw ingredient for a myriad of products at our facility. Ganoderma is the base ingredient in the production of dietary and healthcare supplements that are in compliance with international standards. Supplements and pharmaceutical products are produced under stringent processes in the GMP Pharmaceutical Manufacturing Complex. Therapeutic Goods Administration (TGA) Clean Room was built for stringent international standard production processes. Headquartered in Malaysia, DXN has established 9 factories around the globe to cater to high demand and ensuring quick delivery of our product. Spirulina is a natural form of algae, believed to be one of the oldest life forms on Earth, bursting with a potent source of nutrients. Since DXN's inception, we have ventured into large-scale spirulina cultivation and processing. With DXN technology, we expanded our business to China and built a spirulina farm in Ningxia, China. With our state-of-the-art Ganoderma coffee manufacturing plant, processing, blending, and packing of DXN Ganoderma coffee is carried out under stringent quality control to produce the highest quality coffee range of products. In our mission to a healthy planet, Mother Nature has never been neglected. DXN गुड मॉर्निंग, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज हमारे इस प्रोग्राम में पधारे हुए जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ये नया साल उनके जीवन में काफी सारी खुशियां लेकर आए और काफी सारा फाइनेंशियल फ्रीडम उनको प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए है। और आज इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ हमारे सीनियर मिस्टर वेद प्रकाश जी सीनियर मैनेजर हैं, वो आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और वो भी आपसे कुछ बात करें। वेलकम सर, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वेद सर। थैंक यू सो मच उत्तम जी, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर व्यूअर्स। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, आपकी टीम के लिए मंगलमय हो, और हम उम्मीद करते हैं कि ये 2025 में आपकी जो इनकम है लाखों में पहुंचे और आपके वो सारे सपने पूरे हों जिन सपनों को लेके आप यहाँ पर आए हैं, जिन सपनों को लेके आप डीएक्सएन से जुड़े हैं। तो वो सारे सपने आपके 2025 में पूरे हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ 2025 का आगाज हो चुका है, और कहते हैं आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। तो आगाज हमने कर दिया है 2025 का, और 2025 में हम लोग एक चीज है, एक प्रमोशन है जिसको लेके आ रहे हैं आपके सामने, और जिसके पोस्टर्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। और ये प्रमोशन है हमारा पीजीपीवी क्लब, राइट, जिसके बारे में पहले भी बात हुई है, पीजीपीवी क्लब। और ये जो पीजीपीवी क्लब है, इसमें आपको पर्सनल पीवी 3000 करने हैं और 20,000 आपके पीजीपीवी होने चाहिए। और जो भी लोग इसको मेंटेन करेंगे फ्रॉम द जनवरी ऑनवर्ड्स, तो इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग लोग हैं, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं,
अगर वो 2 महीने अपना 3,000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजीपीवी करते हैं तो वो डायरेक्टली क्लब में एंटर हो जाएंगे। और जब से ही क्लब में एंटर होंगे तो वहां पे आपको एक वेलकम किट मिलेगी जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ 1 साल का आपको पीवी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये है उन लोगों के लिए जो लोग एग्जिस्टिंग लोग हैं। और कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो जनवरी में ज्वाइन कर रहा है या फरवरी में ज्वाइन करता है, जब भी ज्वाइन करता है और 3,000 पर्सनल पीवी करता है और साथ ही साथ 20,000 पीजीपीवी करता है तो वो भी क्लब का मेंबर हो जाता है। और जैसे ही क्लब के मेंबर होते हैं तो आपको एक वेलकम किट मिलेगी और साथ में सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ये है कंडीशन हमारे क्लब की। लेकिन कोई अगर क्लब में है और वो अपनी क्वालिफिकेशंस को पूरा नहीं कर रहा है तो जिस भी मंथ वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते हैं तो वो क्लब से आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर से दोबारा से वो कंडीशन करते हैं तो दोबारा से क्लब के मेंबर बन जाते हैं। और इस क्लब मेंबर होने के फायदे क्या है? क्लब मेंबर होने के फायदे ये हैं कि पहले तो आपको वेलकम किट मिलेगी जब जैसे ही आप क्लब में एंटर करेंगे, और उसके बाद हर मंथ आपको एक सरप्राइजिंग गिफ्ट मिलता रहेगा। राइट, जितने भी क्लब मेंबर है उनको एक सरप्राइजिंग गिफ्ट मिलेगा। और साथ ही साथ हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर पैक है उसको भी आप अवेल कर पाएंगे इजीली। और कुछ और जानकारियां हैं जो आने वाले समय में हम आपको देंगे, जहां पे पीजीपीवी क्लब में रहते हुए आप किस प्रकार से आप दुबई क्वालिफाई कर सकते हैं, आप गोवा क्वालिफाई कर सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको आने वाले समय में दी जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और फिर से एक बार कहूंगा मैनेजमेंट की तरफ से कि 2025 आपके लिए लाभदायक हो, मंगलमय हो, सुख समृद्धि लेके आए और आपके वो सारे सपने पूरे करें, आपके परिवार के टीम के सारे सपने पूरे करें जिनके साथ आप डीएक्शन में आए हैं। तो वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेद सर। और वेद सर ने जैसे कि आपको अपडेट किया कि अब जो टाइम है, जो एक बदलाव जो आने वाला है वो है 3,000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजीपीवी। अगर आप करते हैं हर महीने तो आपको गिफ्ट्स मिलते रहेंगे और आपका एक एक वो कहते हैं ना, एक अलग क्लब में, आप ऐसे क्लब में एंट्री करेंगे जहां पर बिजनेस करने वाले लोग वहां पर होंगे और उनमें एक बदलाव जिसे कहते हैं ना, उसका समय आ गया। और इसी के लिए जो क्रांति कि जो मेन जिसे बोलते हैं ना, हम जो लीडर्स होते हैं, हमारे टॉप क्राउन एम्बेसडर्स, उनको आज इस प्रोग्राम में लाने का हमारा मकसद यही है कि वो आपको आज गाइड करेंगे कि आप किस तरह 2025 में उसमें आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने बिजनेस का जो सिनेरियो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा यहाँ पर हमारे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर भरत गर्गी जी को। प्लीज वेलकम सर आज के इस खास कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगा कि आज का ये खास कार्यक्रम डीएक्शन में एक क्रांति पैदा करे। ओवर टू यू सर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और वंस अगेन सबसे पहले मैं चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर विश कर दूं आपको, और हैप्पी न्यू ईयर। 2025 की शुरुआत हो गई है। डीएक्शन ने अपनी बाहें खोल ली हैं, हमें भी अपनी बाहें खोलने की जरूरत है। आप सभी डीएक्शन के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर, प्रत्येक कंज्यूमर, प्रत्येक कैरियर, प्रत्येक लीडर को मेरी तरफ से, एंटायर डीएक्शन मैनेजमेंट की तरफ से, एज ए लीडरशिप, एज ए क्राउन एम्बेसडर की तरफ से, एंटायर नेटवर्क की तरफ से, प्रोफेसर वासुपाले सर की तरफ से, आरबीसी की तरफ से, मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। सो दोस्तों, आज जिस तरह से हम बात करते हैं, नव वर्ष शुरू हो गया है। नव वर्ष के ऊपर हम कुछ बातें करेंगे, नव वर्ष के ऊपर हम कुछ प्लानिंग करेंगे और कुछ स्ट्रेटेजी और रोड मैप की बातें करेंगे। मेरा मानना यही है कि आज ये जो सौभाग्य मुझे मिला है कि 1 तारीख को मैं आपके सामने अपनी बातों को रख पा रहा हूं, तो सबसे पहले मेरा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है स्ट्रेटेजी मेकिंग के ऊपर। अगर किसी भी लड़ाई को जीतना हो, किसी भी युद्ध को जीतना हो, कोई भी काम सक्सेसफुल करना हो, तो हर एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरी है रणनीति बनाने की। रणनीति इतनी इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग इतनी जरूरी है, कुछ रेजोल्यूशंस बनाने इतने जरूरी हैं, कुछ संकल्प बनाने इतने जरूरी हैं कि जिसके बिना हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। और बड़ा छोड़ दो, अगर आप बहुत छोटे काम की भी बात करो, वो छोटा काम भी नहीं कर सकते आप। कि मुझे मान लीजिए स्टेशन जाना है और बस पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, तो मुझे एक स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी ना कि मुझे कितने बजे अपने घर से निकलना है, नहा के निकलना है या बिना नहाए निकलना है, बैग लेके निकलना है या अटैची लेके निकलना है या खाली हाथ जाना है। अगर बैग लेके जाना है तो कितने दिन के कपड़े होने चाहिए, अगर मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूं तो 3 दिन के मेरे पास कपड़े होने चाहिए।
अगर मुझे वहां टाई पहननी है तो मुझे एक इवेंट में जाना है तो मुझे उसमें टाई भी रखनी होगी। अगर मैं रात में वहां स्टे कर रहा हूं तो नाइट सूट भी रखना होगा। सुबह मुझे अपनी शेविंग किट और ब्रश वगैरह जो भी मेरे डेली रूटीन के काम है वो सामान भी मुझे रखना होगा। आप समझ रहे हैं कितनी छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ आप 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर भी अगर जा रहे हैं तो ये सब प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। ट्रेन का टाइम अगर 5 बजे है तो मुझे 5 बजे से 15 मिनट पहले विद टिकट या विद रिजर्वेशन मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। ट्रेन का जब अलार्म बज जाएगा तो मुझे उस स्टेशन पे, उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना पड़ेगा। और जब ट्रेन आ जाएगी तो मुझे चढ़ना पड़ेगा। और जब वो चढ़ जाऊंगा तो अपनी उस सीट पर बैठना होगा मेरे नंबर पर। ये भी नहीं कि मैं किसी भी नंबर पर बैठ जाऊं। अगर मेरा 20 नंबर है तो मुझे 20 नंबर पर ही जाके बैठना होगा। तो आप समझ रहे हैं बात। फिर जो मेरा डेस्टिनेशन है, मान लीजिए वो ट्रेन तो गोवा तक जा रही है, अगर मेरा डेस्टिनेशन मुंबई है, दादर है, तो मुझे उस दादर पे, मुंबई पे वहां उतरना भी पड़ेगा। अगर वो रात में 12 बजे उतर रही है तो अपने मोबाइल में अलार्म भी लगाना पड़ेगा, कहीं मैं सो जाऊं और मैं पता चला आगे पहुंच जाऊं। इसी प्रकार जब आप डीएक्सन जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आ तो जाते हैं तो आपको भी कुछ इसी छोटे छोटे प्रकल्प आपको करने पड़ेंगे, छोटे छोटे कार्य आपको करने पड़ेंगे, छोटी छोटी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, छोटी छोटी सोच आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी और उसी हिसाब से आपको आगे काम को करना पड़ेगा। तभी एक बहुत बड़ी सक्सेस आप पा सकते हो। आप ज्वाइन तो कर जाते हो और जब देखते हो कि कोई दूसरा सफल हो रहा है और मैं सफल नहीं हो पा रहा, तो मैं ये एनालिसिस नहीं कर पाता मुझसे गलती क्या हो रही है, मैं क्यों नहीं वहां तक पहुंच पा रहा कि दूसरा आदमी या मेरा अपलाइन या मेरा कोई सीनियर या कोई भी लीडर पहुंच गया, तो मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा। आज का मेरा प्रेजेंटेशन बहुत शॉर्ट प्रेजेंटेशन है बट बहुत काम का प्रेजेंटेशन है। बहुत ध्यान से सुनिए और जितने भी लोग डायरी पेन लेके नहीं बैठे हैं, डायरी पेन लेके बैठ लीजिएगा, क्योंकि बीच में कुछ 2-3 स्लाइड्स ऐसी आएंगी जिसमें मैं आपको रेजोल्यूशंस बताऊंगा। रेजोल्यूशंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली संकल्प, अगर हम इसे बोलें कि मेरी कुछ बातें, कुछ मेरे कमिटमेंट, कुछ मेरे दृढ़ संकल्प जो मुझे इस 2025 में करने ही करने हैं। हर एक व्यक्ति सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने अपने स्तर पर अपने अपने रेजोल्यूशंस बनाए। राइट, आज की इस मीटिंग में हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 बहुत बढ़िया गया है, अनएक्सपेक्टेड गया है। कई लोगों का बहुत बढ़िया गया है, कई लोगों का एवरेज गया होगा और कई लोगों का कुछ कम भी गया होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 में जो भी हुआ हम पास्ट में जाके अब चेंज नहीं कर सकते। कल हमने दिसंबर की बहुत शानदार क्लोजिंग करी है, 2024 के दिसंबर की क्लोजिंग करी है, लेकिन अब यहां पे समय है 2025 में जाने का। और जाने का नहीं, बिल्कुल हम आज रात में जो बात रात में 12 बजे बीती है उसमें हम 2025 में ऑलरेडी आ चुके हैं। और अगर मैं बात करूं, इस समय 12 बज रहे हैं तो ऑलरेडी 12 घंटे इस साल के हमारे जा चुके हैं। ये जो टाइम है ना, ये इतनी तेजी से भाग रहा है, इसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो आर यू रेडी फॉर दैट? अगर आप सब लोग तैयार हैं इस 2025 में एंट्री करने के लिए तो जरूर मुझे यहाँ पे थंब दिखा दीजिए, सर आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। तो 2025 में आपको क्या करना पड़ेगा? साधारण स्पीड से या जो भी आपकी एक नेचुरल स्पीड होगी उस स्पीड से काम नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं भारत की, अगर मैं बात करूं, अपने देश की बात करूं, तो हमारा देश, आपको क्या लग रहा है पिछले कुछ सालों में क्या इसने स्पीड पकड़ी है? आप जरा जाइए अपने घर से बाहर निकल के और देखिए, क्या पहले जैसी रोड थी, क्या उस रोड में सुधार हुआ है? क्या आपके गांव में रोड का सुधार हुआ है? आपके शहर में रोड का सुधार हुआ है? क्या रोड से बाहर निकल के जब अपने शहर से बाहर निकलते थे तो पहले कैसी रोड थी और पहले अब कैसे रोड हो गए हैं? और कई जगह तो बहुत स्पीडली हाईवे बन चुके हैं। पहले जो सिंगल 10 या 20 फुट का रास्ता था, वहां 50-50 फुट के वन वे, मतलब एक तरफ से जाने का और एक तरफ से आने का, अभी कुछ 5-10 सालों में ही ये डेवलपमेंट हो गया है। तो स्पीड तो पकड़ी है, स्पीड तो पकड़ी है, पर मुझे ये देखना है क्या मैंने स्पीड पकड़नी है, क्या मैं स्पीड पकड़ पा रहा हूं? और अगर नहीं पकड़ पा रहा हूं तो मैं भूल जाऊं सारी बातें। अब मैं याद करूं 2025, 1 जनवरी 2025 का आज दिन है, यहां से क्या मैं स्पीड पकड़ने के लिए तैयार हूं?
क्योंकि आप ये देख लीजिए, अगर मैं बात करूं डीएक्सन की, अगर मैं बात करूं आपके टॉप मैनेजमेंट की, अगर मैं बात करूं टॉप लीडरशिप की, आपके अप्लायंस की, काफी लोगों ने बहुत धुआंधार स्पीड पकड़ी है, जबरदस्त स्पीड पकड़ी है। अभी 27 दिसंबर को आपका जीता जागता उदाहरण है फ्रीडम डे का। किस कदर, कितनी बारिश थी उस दिन, कई शहरों में तो बारिश थी उस दिन, कई शहरों में ठंड थी उस दिन, कोहरा था, बर्फ पड़ रही थी, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने 27 दिसंबर को प्रोफेसर सर की अगवानी में फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया और अपनी इस डीएक्सन की फ्रीडम डे को एंजॉय करा और अपने शोकेस किया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले 2025 में ये जो पूरा साल है इसके लिए हम तैयार हैं। तो जरूरत बस एक यही मैं कहना चाहूंगा, ये जो डिसीजन लेने की बात है, यस, वन डे या डे वन, दिस इज योर थॉट प्रोसेस कि मैं एक दिन शुरू करूंगा। हाँ, मेरी बात सर, यू आर राइट सर, भरत सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। डीएक्सन में मैं जुड़ गया हूं, डीएक्सन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं भी एक दिन इसमें काम करूंगा, राइट, मैं ये विचार कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, या ये मैं डिसाइड कर लूं, व्हाई नॉट टुडे, हम आज से ही क्यों ना शुरुआत करें, आज से ही मैं क्यों ना अपने आप को स्केच रेडी कर लूं कि राइट, आज से ही वो दिन है, पहली तारीख है कि मैं अपने बिजनेस को, अपने इस मुकाम को आज पहली तारीख से ही शुरू करूं। तो जब मैं शुरुआत करने की बात करता हूं तो सबसे पहले आप ड्रेसअप हो जाइए, तैयार हो जाइए, और सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट स्टॉक पॉइंट पे जाके अपना बिलिंग कराइए। आज का सबसे पहला होमवर्क है, आज से का सबसे पहला टास्क है कि आप अपने 3000 से लेके, एक प्रोडक्ट से लेके 3000 तक, कोई एक प्रोडक्ट ले, अगर मेरी ज्यादा कुवत नहीं है आज तो कम से कम मैं एक प्रोडक्ट की बिलिंग जरूर कराऊं, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम से भी मिनिमम। और अगर मैंने प्लानिंग करी हुई है और मैं प्लानिंग कर रहा हुआ हूं या करूं आज से मेरी इस बात से, तो मैं सीधा जंप लेके जाऊं कि मिनिमम 3000 पीवी का बिल तो मैं कराऊं। अगर मेरे पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरी जेब में सिर्फ 150 रुपए पड़े हैं, तो मैं जाके मात्र 130 रुपए का एक साबुन परचेज कर लूं, एक टूथब्रश परचेज कर लूं 90 रुपए का, एक सितोपान 120 का परचेज कर लूं। और अगर मेरी पास फंड है तो मैं जाके कम से कम 1000 पीवी, 2000 पीवी, 3000 पीवी, और कोई ऐसा भी है जो 5000 पीवी भी आज कर सकता है, तो मैं आज जरूर ये आपसे कहूंगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज आप अपने अपलाइन को अपना बिल व्हाट्सएप करके भेज दीजिए, अपने स्टॉकिस्ट को, अपने लीडर को, अपलाइन के लोगों को आप व्हाट्सएप कर दीजिए, सर मैंने शुरुआत कर दी है। और एक डायलॉग चल रहा है ना आजकल पुष्पा का, मैं झुकेगा नहीं, और अब मैं पूरे साल झुकेगा नहीं। इस तरह की भावना के साथ में, इस तरह की सोच के साथ में आप आज ही शुरुआत कर दीजिए। आर यू रेडी फॉर दैट? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके भेज सकते हैं, यस सर आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं आज ही शुरुआत करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप ये मान लीजिए, कंपनी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमारे लिए डायरी का अरेंजमेंट कर दिया है। आई होप बहुत जल्दी डायरी आप सब लोगों के पास आ जाएंगी, और जितनी जल्दी ये डायरी आ जाएंगी, लेकिन जब तक ये डायरी नहीं आ पाती हैं, आप लोग अपनी कोई भी एक डायरी ले लीजिए और उस डायरी को खोल के देखिए। वो डेट वाइज डायरी होती है, अगर आप ईयर वाली डायरी लेंगे तो उसमें 365 दिन आपके हैं। होता है ना, उसमें जनवरी का आएगा 1 जनवरी, फिर अगले पेज पे 2 जनवरी होगी, या कई डायरी में हाफ पेज का होता है, आधे पेज में 1 तारीख होगी, आधे पेज में 2, फिर दूसरे पेज पे 3 और 4, या एक सिंगल पेज पे 1 होगी, फिर दूसरे पेज पे 2 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 5, फिर 6। उस डायरी को जरा एक बार देखिए, 2025 आपको दिखने को मिलेगा। अब जब डायरी को देखेंगे तो आप उसमें 365 दिन बिल्कुल ब्लैंक देखेंगे। 365 दिन आपके पास ब्लैंक, जैसे ये डायरी है, बिल्कुल इसी तरह से परमपिता परमेश्वर ने आपकी झोली में ये 365 दिन डाल दिए। इसमें क्या भरना है इस ब्लैंक डायरी में, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मैं आपको रोड मैप दे दूंगा आज की प्रेजेंटेशन से, ये आपको ही डिसाइड करना है कि डीएक्सन के कंसर्न में, मुझे अपनी लाइफ के कंसर्न में, मुझे अपनी फैमिली के कंसर्न में इस 365 दिन में क्या भरना है।
राइट? आर यू रेडी? ये डायरी का काम कर लेंगे आप? एक डायरी जरूर आज से ही, डायरी नहीं मिले रजिस्टर ले लीजिए, और अगर डायरी मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, एक डायरी आज जरूर से जरूर आपके पास हाथ में होनी चाहिए। अब उस डायरी में या एक सिंपल पेज पे 2025 के रेजोल्यूशंस लिखिए, अपना नाम डालिए, अपने डेट डालिए आज की, अपना एज लिखिए, अपना शहर का नाम लिखिए, अपने अपलाइन का नाम लिखिए, कि इसमें कुछ बातें लिखिए, इसमें कुछ ऐसी प्लानिंग करिए जो इस 2025 में आप करना चाहते हैं। हर किसी का अपना एक अलग रेजोल्यूशन हो सकता है, हर किसी का अपना एक अलग संकल्प हो सकता है। कुछ कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा मेरी इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, क्या मुझे कंटिन्यू करना है? आई वॉन्ट टू ट्राई, मान लीजिए मेरी रिटेलिंग वीक है, मैं होम मीटिंग नहीं ले पाता हूं, मैं बिजनेस प्लान नहीं दिखा पाता हूं, आई वॉन्ट टू ट्राई मार्केटिंग प्लान शो करने के लिए मैं आज ट्राई करूंगा। आई वॉन्ट टू स्टॉप, मेरे अंदर कोई गलत आदत है और मैं उसे बंद करना चाहता हूं, तो आज मैं निर्णय लेता हूं कि मैं आज से अपनी वो गलत आदत को बंद कर दूंगा। आई वॉन्ट टू विजिट, कोई एक ऐसा शहर जिसमें मैं जाना चाहता हूं। मैं अयोध्या नहीं गया, मैं अयोध्या जाना चाहता हूं। मैं गोवा नहीं गया, मैं गोवा जाना चाहता हूं। मैं शिमला नहीं गया, मैं शिमला जाना चाहता हूं। मैं अब्रॉड की बात करूं, मैं मलेशिया जाना चाहता हूं। कुछ इस तरह की बातें भी लिख सकते। एंड माई गोल ऑफ दिस ईयर, इस साल के, मैं आपको बताऊंगा गोल को कैसे लिखना है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि मेरा एक पूरा प्रेजेंटेशन गोल सेटिंग के ऊपर है जो आप YouTube से जाके देख सकते हैं, कई बार मैं दे चुका हूं, और इस 2025 में भी मैं सोच रहा हूं एक बार दोबारा आप लोगों के लिए फिर वो प्रेजेंटेशन लेके आऊंगा गोल सेटिंग के ऊपर। आज थोड़ा सा टच करूंगा उसके ऊपर। तो आपको अपने वो गोल, अपने वो लक्ष्य लिखने हैं। और एक तरकीब बहुत बढ़िया है, एक विजन बोर्ड बना लीजिए। एक बोर्ड बना लीजिए, थर्माकोल का हो सकता है, हार्डबोर्ड का हो सकता है, इसे विजन बोर्ड बोलते हैं। और अपने वो जो रेजोल्यूशंस, अपने वो जो लक्ष्य हैं, अपनी वो जो स्ट्रैटेजी है, अपनी वो जो चाहते हैं, अपने वो जो मैं बताऊंगा आपको इसके अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा, वो एक विजन बोर्ड में आप लिख के दीवार पे चिपका दीजिए कि ये मेरी चाहते हैं, ये मुझे करना है। इस 2025 में मेरे ये काम हैं जो अखंडनीय है, जिन्हें मैं करूंगा ही करूंगा। पहले हर इंसान को क्यों पता होना जरूरी है। इस 2025 में, मैं पुराने सालों की बात नहीं कर रहा, आप डीएक्शन में 2 साल से हो, 4 साल से हो, 10 साल से हो, 20 साल से हो, आपका क्यों क्लियर है या नहीं? 90% लोग गलती करते हैं डीएक्शन में, 95% लोग गलती करते हैं। वो कैसे जानने में ज्यादा अपना दिमाग लगा देते हैं, क्यों जानने में बिलीव नहीं करते। आप पहले अपना क्यों निश्चित करो। तो ये जो विजन बोर्ड बता रहा हूं, मैं डायरी बता रहा हूं, ये आपका क्यों, या ये जो मैं आपको रेजोल्यूशंस की बात बता रहा हूं कि 2025 में अपने रेजोल्यूशंस बनाइए, वो आपको मदद करेंगे। आप कम से कम, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, आप 10 भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं, 50 भी बना सकते हैं। कोई 5 सॉलिड रेजोल्यूशंस एक पेपर पे लिख के जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए कि ये 2025 में मैं कुछ करूं नहीं करूं, मैं अपना 100% देके डीएक्शन की माध्यम से, अपने अपलाइन की माध्यम से, अपनी फैमिली की सपोर्ट की माध्यम से, एंटायर लीडरशिप की माध्यम से, मैं ये 5 काम तो करूंगा ही करूंगा। 1 जनवरी 2025 है, पूरी शिद्दत से 365 दिन काम करिए। उस डायरी पे, जो पहले डायरी मैंने बताई थी डेट वाइज, जो काम किया है उस डायरी पे लिखिए कि आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया। आज मैंने कुछ भी काम नहीं करा तो कट्टम मार दीजिए उस पेज पर, आज मैंने ये काम करा, ये लिखिए। और 365 दिन बाद, अगर आपको मेरी बात पे बिलीव ना हो तो सिर्फ 365 दिन मेरी बात मान के देख लीजिए, ये जो 5 आपने लिखे हैं ना, पांचों के पांचों पूरे होंगे। ये जो पांचों के पांचों आपने बातें लिखी होंगी ना अपने, 365 दिन काम होगा। और जो काम किया है, रात में सोने से पहले वो काम उस डायरी पे लिखा जाएगा। ये वाली डायरी जो थी मैंने आपको बताई थी, इस डायरी में आप लिखना वो 365 दिन वो काम जो आपने किए हैं। और ये 5 वो लक्ष्य होंगे जो आपको चाहिए, मैं बताऊंगा भी और इसके बारे में अगली स्लाइड में। तो ये 5 100% मैं बता रहा हूं 31 दिसंबर 2025 को। और जब हम बात करेंगे 1 जनवरी 2026, मैं वापस आऊंगा 1 जनवरी 2026 को आपके सामने, और बताना मुझे आप वो लोग अपना रेज हैंड करके, या मैनेजमेंट के माध्यम से, या मुझे व्हाट्सएप करके कि सर
मैं आपकी इस मीटिंग में अपना एक्सपीरियंस, अपनी टेस्टिमोनियल, अपना केस स्टडी शेयर करना चाहता हूं कि मैंने ये 5 मिनिमम काम लिखे थे और मैंने देखो ये 5 में पांचों के पांचों पूरे कर लिए और 6-7 और आपने पूरे कर लिए। वो अपनी केस स्टडी 2-2 मिनट आप मुझे शेयर करना। हम 1 जनवरी 2026 में फिर मिलेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या है, अभी कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, क्या लक्ष्य है, क्या रेजोल्यूशंस हैं। कुछ रेजोल्यूशंस के उदाहरण मैं आपको देता हूं। सबसे पहला रेजोल्यूशन होगा कि मैं कितने रुपए मुझे इस साल में चाहिए। 31 दिसंबर 2025 को, यानी 1 जनवरी 2026, जिसका बोनस 10 जनवरी 2026 को आएगा। राइट? 31 दिसंबर में क्लोजिंग होगी, उसका बोनस 10 तारीख को आएगा। तो वो एक फिगर आज सोने से पहले सोच लीजिए, वो कितनी फिगर है। हाइपोथेटिकल फिगर मत लेके जाइए कि मैं 1 करोड़ रुपए लिख ले रहा हूं, 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। हाँ, मेरा लक्ष्य हो सकता है मेरा 1 करोड़ रुपए लिखने का, मेरा लक्ष्य है 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने का। एक सेंसिबल इनकम जो आपका विवेक कहता है और उस इनकम के लिए आप रात दिन काम करने के लिए तैयार हो जाएं, वो इनकम की फिगर आप लिख लीजिए। वो 1 लाख हो सकती है, वो 2 लाख हो सकती है, 3 लाख हो सकती है। हो सकता है ऑलरेडी कोई एक लीडर 2 लाख रुपए कमा रहा है हमारे बीच में। बहुत से लीडर्स हैं 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं। हाँ, वो लिखिए जो 5 लाख कमा रहे हैं, अगले 1 साल में मुझे अपनी इनकम को 10 लाख पे लेके जाना है। कोई 10 कमा रहा है तो मुझे अपनी इनकम को 15 लाख पे लेके जाना है, या 20 लाख पे लेके जाना है, या 12 पे लेके जाना है। ये आपकी अपनी विश है। राइट? कोई 5,000 रुपए महीना कमा रहा है, हाँ सर मुझे अपनी इनकम को अगले 31 दिसंबर तक 50,000 रुपए पे लेके जाना, या 1 लाख रुपए पे लेके जाना। ये आज सबसे पहला रेजोल्यूशन जो ये है, यहां पे वो लिख दीजिए 31 दिसंबर 2025 में मैं डॉट डॉट डॉट, जो फिगर आपकी है 1 लाख है, 2 लाख है, 50,000 है, जो भी फिगर है, इतने रुपए कमा रहा हूं। कमाऊंगा नहीं, ये आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, मतलब यू हैव अचीव्ड। आपको ये फील करना है कि ये मैंने पा लिया है। वो फील भी लाना है अपने अंदर कि यस ये इनकम मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं। भले आज आपकी इनकम 2,000 रुपये, 1,000 रुपये है, बट आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए, आपका ये माइंडसेट होना चाहिए, यस वो जो फिगर आपने सोची है वो कमा रहा हूं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे गाड़ी का एक प्लान करना है। मुझे एक 4 व्हीलर मुझे लेना है। अगर मेरे पास ऑलरेडी एक 4 व्हीलर है तो उससे ऊपर का, अगर मेरे पे 5 लाख 10 लाख रुपए का फिगर है तो 15 लाख या 18 लाख या 20 लाख का 4 व्हीलर का प्लान करना है। हर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आपको अपनी गाड़ियां चेंज करनी है। हर एक लीडर को हर एक दूसरे साल में अपनी गाड़ी को बदलना है। राइट? तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से आपको इस सिस्टम में प्लग इन होना ही होना है। तो वो गाड़ी का कौन सी गाड़ी होगी, कौन सा मॉडल होगा, कौन सा उसका नाम होगा। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो बाइक का बनाए, यस मुझे एक बाइक की परचेस करनी है। राइट? दूसरा काम, मुझे एक घर भी लेना है। तीसरा मेरा एक रेजोल्यूशन हो सकता है कि मैं अगर आज एक रेंटेड हाउस पे हूं, कोई बात नहीं मैं एक घर लूंगा, कोई बात नहीं मैं एक अपनी प्रॉपर्टी लूंगा, कोई बात नहीं मैं एक फ्लैट लूंगा। जो भी है आज सोच लीजिए मुझे क्या करना है। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, एक लैपटॉप का लक्ष्य बना ले। मेरे पास कोई विदेश यात्रा नहीं है, एक मुझे विदेश यात्रा इस साल लेनी है। इस तरह के अपने रेजोल्यूशंस बनाएं। किसी के पास आज स्कूटी नहीं है, वो अपनी स्कूटी का एक रेजोल्यूशन बनाए, यस मुझे एक स्कूटी लेनी है, मुझे एक लैपटॉप लेना है। यानी मेरे जो वो संकल्प है कि ये मैं इतनी मेहनत करके अपना ये गोल डिसाइड करूंगा कि मुझे ये अपना लक्ष्य मेरा है कि इस साल में मुझे ये काम करना है। क्योंकि जब मेरा गोल डिसाइड हो जाएगा तब उसके पीछे उसके एक्शन शुरू होंगे। मुझे इस साल शादी करनी है, किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों की शादी करनी है, किसी को अपने बच्चों को पढ़ाना है, वो सारी चीजों का एक मिला जुला के आप एक रेजोल्यूशन बना लें। और एक रेजोल्यूशन बनाना है कि मुझे हर महीने 3,000 में कंपनी क्वालिफाई कर देती है तो हम 5,000 का लक्ष्य लेके चलें कि हमें 5,000 पर्सनल पीवी क्लब का पार्टिसिपेशन करना है इस 2025 से। आज जितने पैसे हैं आपके पास,
आज जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं आज ही अपनी ओपनिंग करके, आज से शुरू करके इस महीने की 30 तारीख तक, 31 तारीख तक मैं 5000 पर्सनल पीवी के क्लब का एक हिस्सा बन जाऊंगा। ये एक रेजोल्यूशन जरूर बना लें, लिखें उसमें अपने रेजोल्यूशन में 5000 पीवी एवरी मंथ, पर्सनल पीवी एवरी मंथ। और इसे अगर आप 30 से भाग करेंगे ना तो 166 बैठ रहा है, 170 पीवी पर डे। अगर मैंने लक्ष्य बनाया कि मुझे रोज 170 पीवी करूंगा तो मैं पूरे महीने में मैं बात करूंगा तो बड़े आराम से 5000 पीवी की छलांग लगा दूंगा। जब एक बड़े लक्ष्य को आप डेली बेसिस पर डिवाइड कर लेंगे, अगर मैंने आज 170 पीवी का बिजनेस नहीं किया तो कल मुझे 240 पीवी का बिजनेस करना है। कल भी नहीं किया तो अगले महीने मुझे 500 पीवी, अगले दिन मुझे 500 पीवी का बिजनेस करना है। 3 दिन में 500 पीवी आपके जरूर निकल जाने चाहिए। बहुत आसानी से आपके 5000 पीवी बड़े आराम से इजीली वे में बिना किसी का लोड करे निकल जाएंगे, राइट। इसमें आपका पर्सनल कंजम्पशन भी हो सकता है। अब इसी के साथ साथ पैरेलली चलेगा 20,000 पीजीपीवी क्लब। ये 20,000 पीजीपीवी क्लब क्या है? इस 20,000 में मैं जो अपने नाम से बिल काटूंगा वो पीवी माइनस हो जाएगा। मान लीजिए मैंने अपने नाम से 5,000 पीवी का बिल काटा तो मेरे लिए जो लक्ष्य रह गया वो मात्र 15,000 पीवी का रह गया कि अब मुझे 15,000 पीजीपीवी करने हैं और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, राइट। इस तरह से आप अपनी प्लानिंग को, अपने काम को अंजाम दीजिएगा, राइट। आपको क्या करना है, इसके लिए क्या करना होगा? मान लीजिए 20,000 पीजीपीवी करना है, एक सेकेंड, 20,000 पीजीपीवी करना है तो बहुत सिंपल है। मुझे जो है कम से कम अगर मैं 5,000 पीवी करने वालों की बात करूं तो 3 डिस्ट्रीब्यूटर और चाहिए मुझे अपने नीचे जो 5,000 पीवी कर लेंगे। उनको भी फायदा होगा, वो 5,000 पीजीपीवी का पार्ट बनेंगे, उनकी भी इनकम सॉलिड बनेगी, उनके पास भी एक कंज्यूमर नेटवर्क होगा, उनके पास भी एक अच्छी टीम बन जाएगी और आप 20,000 पीजीपीवी में आ जाएंगे। अगर वो 5,000 को अगर मैं और थोड़ा सा बांट लूं, 5 लोग मुझे 3,000 पीवी वाले भी मैंने एसोसिएट कर लिए, सिर्फ 5 लोग 3,000 पीवी वाले, तो मेरे 15,000 पीवी हो गए और मैंने अपने 5,000 पीवी करे तो मेरा 20,000 पीजीपीवी हो गया। ये स्ट्रेटेजी आप आज से ही बना लीजिए। कौन वो 5 महारथी होंगे जो 3,000 पीवी करेंगे? कौन वो 3 महारथी होंगे जो 5,000 पीवी करेंगे? ये बहुत आसान गेम है, बशर्ते समझ में आने वाली बात है। और जैसे जैसे वो लोग मैच्योर होते चले जाएं उनको भी ये बता दीजिए कि सर अब आप 5,000 पीवी कर रहे हैं, आप 3,000 पीवी कर रहे हैं, आप अपने नीचे 3 लोगों को ऐसे जोड़िए जो 5,000 पीवी करने लायक हो जाएं, तो आप भी 20,000 पीजीपीवी क्लब का हिस्सा बन जाएंगे। तो होता क्या है कि जो धारा बह रही है वो धारा जब बहती है तो उस धारा का हिस्सा बनते चले जाएंगे सब लोग, राइट। अब ये मैसेज आपको खुद समझना है और ये मैसेज अपनी डाउनलाइन में कन्वे करना है। प्रॉब्लम तब आती है जब अपलाइन के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा या टॉप लीडरशिप के द्वारा एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और उस स्ट्रैटेजी को नीचे इंप्लीमेंट नहीं करते आप लोग, या खुद इंप्लीमेंट नहीं करते। सर क्या होगा, 20,000 पीजीपीवी नहीं भी करे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मत करिए। आप कोई प्रेशर थोड़ा है, कोई आपका अपलाइन आके थोड़ा करवा रहा है कि भाई तुमने क्यों नहीं करे, तुमने करने। कह सकता है कि सर 20,000 पीजीपीवी आपको करने चाहिए, पर अगर किसी वजह से आप नहीं करते तो टोटली लॉस इसमें आपका है, क्योंकि आप उस धारा के प्रवाह से अलग हो गए। और वो जो मुहिम चल रही है उस मुहिम में जो जो आ जाएगा कंपनी के रूप में, ऑफर के रूप में, गिफ्ट के रूप में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रही है, यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व कर रही है, आ जाएगा बहुत अच्छी बात है। नहीं आ जाएगा वो मोटिव नहीं है कि मुझे गिफ्ट का हिस्सा बनेगा तो मैं 20,000 पीजीपीवी करूंगा। मैं कह रहा हूं आप यू पीपल आर वेरी लकी कि जब आप डीएक्सन का नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो तो इस तरह के कुछ ऑफर्स, कुछ इस तरह के कुछ गिफ्ट्स वगैरह की फैसिलिटी है। जब मैंने डीएक्सन नेटवर्क बिजनेस किया था, डेवलप किया था, तो ना ही कोई गिफ्ट थे, ना ही कोई ऑफर थे, ना ही कोई फैसिलिटीज थे, उस समय डेवलप किया था। यू पीपल आर वेरी लकी कि ऐसा करोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये आज आपको ये सुनहरा मौका है कि सुनहरे मौके का फायदा आ जाए, बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आए तो हमें उस काम से अपनी टीम को इन्वॉल्व करना है और उस काम में जितने ज्यादा लोगों के साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो अच्छा रहेगा। और क्या हो सकते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है तो जरूर
चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कुछ और दो चार बातें लिख लेते हैं, ये लिखने की बातें हैं, लिख लीजिएगा। 2025 के मेरे कुछ और संकल्प होंगे, कुछ और रेजोल्यूशंस होंगे कि मैं सेल्फ यूज करूंगा ऑल डीएक्सन वेलनेस प्रोडक्ट्स एंड होम बेस्ड प्रोडक्ट्स। जितने भी डीएक्सन आज ये प्रोडक्ट बना रहा है, मैं 90% प्रोडक्ट्स का सेल्फ कंजम्पशन जरूर करूंगा। हमने देखा कई लोग सिर्फ अगर एक ही प्रोडक्ट जो पहले से यूज करते हुए आ रहे थे, अब नए प्रोडक्ट आने के बाद भी बहुत सारे लोग वो नया प्रोडक्ट लेने को नहीं अपना माइंडसेट बना पाते। नहीं नहीं सर, नहीं सही, यही सही है सर। हम कह रहे हैं कि सर ये प्रोडक्ट भी नया आ गया है, इसको भी आप उस प्रोडक्ट के साथ साथ एड ऑन करके ऐड कीजिए, आपके जो है वैल्यू एडिशन हो जाएगा, आपको और ज्यादा हेल्थ इंप्रूवमेंट आएगा, आपको और अच्छा टेस्ट मिलेगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज मिलेंगी। या बहुत सारी चीज ऐसी थी जो हमारे पास थी नहीं, कुकिंग ऑयल नहीं था हमारे पास, तो कुकिंग ऑयल हम अपना जरूर से जरूर रिप्लेस कर लें। हमारे पास टूथब्रश नहीं था तो टूथब्रश रिप्लेस कर लें। हम पे सोप एक तरह के थे, आज हम पे 3 तरह के सोप्स हैं। हमारे घर में कपड़े धोने का कुछ आइटम नहीं था, तो आज हमारे पे वो कपड़े धोने का आइटम है। अगर मैं डीएक्सन के हेल्थ केयर प्रोडक्ट और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट और वेलनेस प्रोडक्ट यूज करता हूं, तो मेरा ये दायित्व है कि मैं अब वो प्रोडक्ट भी बाजार से क्यों लेके आऊं जो ऑलरेडी डीएक्सन के छत के नीचे मिल रहे हैं। और अगर उसके बावजूद भी अगर आप कपड़े धोने का, फर्श धोने का, आप खाने का तेल, आप केसर और ना जाने हल्दी, ऐसी बहुत सारी चीजें अगर आप आज भी बाजार से लेके आते हैं, तो आप ये मान के चलिए आपका बिजनेस के वही बात हो गई कि मैं अपनी मिठाई तो बनाता हूं पर अपनी मिठाई खाता नहीं। तो वो काम हमें नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। हमारी मिठाई है तो हमें खानी भी है और लोगों को भी खिलानी है, राइट? क्योंकि एक वन प्रोडक्ट है, सारे के सारे प्रोडक्टों के अंदर बहुत अच्छी यूनिकनेस है, राइट? और साथ ही साथ में आपको क्या काम करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, राइट? शून्यता मेडिटेशन करना है। ये 2 काम आपको जरूर करने हैं, डेली एक्सरसाइज एंड शून्यता मेडिटेशन। ठीक है, आप कुछ भी फिजिकल जरूर कीजिए, कुछ भी आप रनिंग करते हैं रनिंग कीजिए, आप जिम करते हैं, योगा करते हैं, कुछ हाथ पैर चलाते हैं या कार्डियो करते हैं, जंपिंग जैक करते हैं, थोड़ा सा अपने शरीर को जरूर चलाइए, थोड़ा सा पैदल चलने की आदत डालिए, और अपने माइंड सेट को, कितनी बढ़िया शून्यता टेक्निक डॉक्टर लिम ने हमें दी है, इसमें हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, सांस आता है सांस जाता है, 9 to 0, 29 to 0, 99 to 0। ये बहुत सिंपल और बहुत आसान है, हमें डेली करनी है। ये 2025 का अपना रेजोल्यूशन जरूर बनाइए। आपको बुक रीडिंग करनी है, कोई भी एक बुक ले लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स हैं। एक बुक लीजिए, उसको रोज 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज पढ़ना शुरू कीजिए, और उसे पढ़ने के बाद, एक सेकंड भाई अभी थोड़ी देर में करता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, आधे घंटे में फ्री हो जाएगा, आधे घंटे में मीटिंग खत्म हो जाएगी, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, अभी करता हूँ। बुक रीडिंग हो गई है ना। उसके बाद क्या हो गया, गोल, ड्रीम्स और टारगेट्स। ठीक है, गोल, ड्रीम्स और टारगेट। मेरे गोल्स क्या होंगे, मैं जरूर से जरूर अपने गोल्स प्लानिंग कर लूंगा, ड्रीम्स क्या है, टारगेट्स क्या है, वो सारी चीजें मैं प्लान कर लूंगा। 5000 पर्सनल पीवी मुझे करने ही करने हैं, 3000 मिनिमम बैरियर है, करने ही करने हैं 3000, और 5000 तक अपने आप को लेके जाना है। जो 3 कर रहा है वो 5 करे, जो 5 कर रहा है वो 6 तक जाए, जो 6 कर रहा है वो 7 तक जाए, जो 7 कर रहा है वो 10 तक जाए। इसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम की हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 170 पीवी पर डे का एवरेज आ रहा है, राइट? और जैसे मैंने बताया 20,000 पीजीपीवी का एक ये हो गया, ये आप जरूर अपने रेजोल्यूशंस में लिख लीजिएगा। 3 डाउनलाइन को अगर मैंने 5-5 हजार पीवी भी करवा दिया तो बड़े आराम से मैं कर लूंगा। 2025 का रेजोल्यूशन और क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे रोज एक प्रोस्पेक्टिंग करनी ही करनी है। एक प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे एक व्यक्ति से रोज मिलना ही मिलना है, 1 प्रोस्पेक्टिंग। एक होम मीटिंग मुझे करनी ही करनी है, 1 होम मीटिंग मुझे करनी ही करनी है। एक प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन मुझे देना ही देना है, एक बिजनेस प्लान मुझे देना ही देना है। अगर आपको बात करनी है पैसे कमाने की, लक्ष्य पूरे करने की, तो ये करे बिना आप नहीं कर सकते। एक बिजनेस प्लान अगर आप किसी को नहीं दोगे तो आपकी टीम कैसे बनेगी, आपके नीचे ज्वाइनिंग कैसे आएंगी? आपको एक बिजनेस प्लान देना ही देना है। आपको एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है। हर रोज कंपनी 12 बजे ऑनलाइन मीटिंग करती है,
हर रोज डीएक्सन आरबीसी नेटवर्क 7 बजे ऑनलाइन मीटिंग करता है। हो सकता है मैं 12 बजे अटेंड ना कर पाता हूँ, हो सकता है मैं 7 बजे मीटिंग अटेंड ना कर पाता हूँ, फील्ड में रहता हूँ, जॉब में हूँ, कुछ और काम में हूँ, तो मैं रात में सोने से पहले ये 2 मीटिंग जरूर यूट्यूब पे चली जाती हैं, रोज की रोज मीटिंग मैं यूट्यूब से जाके अपने कन्वीनियंसी से, अपने टाइम की कन्वीनियंसी से जरूर वो मीटिंग देखूंगा। ये मेरा संकल्प होना ही चाहिए इस 2025 में। माई होम माई शॉप की जो स्ट्रैटेजी है, जिसे हम पिछले कई सालों से फ्रेंचाइजी मॉडल के नाम से जानते थे, आज कंपनी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा नाम दिया है माई होम माई शॉप। मेरा घर ही मेरी दुकान है। इस भावना के साथ में मुझे अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी, मुझे अपने घर को ही एक दुकान के रूप में कन्वर्ट करना होगा। मेरा जो ड्राइंग रूम होगा, मेरा जो बैठने की जगह होगी, मेरा जो सिटिंग एरिया होगा, जहां मेरे गेस्ट आके बैठते होंगे, वहां एक कॉर्नर पे, जिसे मैजिक कॉर्नर का नाम भी देते थे, माई होम माई शॉप के रूप में आपको अपने घर पे इस तरह का एक दो तीन तीन प्रोडक्ट का डिस्प्ले आपको वहां पे डिस्प्ले करना ही करना है। अपनी अपनी सामर्थ्य, मेरे पास अच्छी सामर्थ्य है तो मैं 50,000 का डिस्प्ले करूं, मेरे पास कम सामर्थ्य है तो मैं 20,000 का डिस्प्ले करूं, और कम है तो 10 का करूं, पर मुझे ये शुरुआत करनी ही करनी है। माई होम माई शॉप का ये रेजोल्यूशन जरूर बनाइए। हर एक डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर इस शॉप के साथ आगे चलेगा। और जब आप देखेंगे ये सारे काम कर लिए, तो हमेशा याद रखिए, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा दें, तीनों चीज का लगना जरूरी है। अगर आप सोचें कि मैं सिर्फ धन लगा देता हूं और तन और मन नहीं लगाऊंगा, तो कुछ बड़ा काम नहीं होगा। लेकिन जहां ये त्रिदेव आ गए, तन आ गया आपका, मन आ गया और धन आ गया, तो मैं सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। राइट? छोटे कदम से ही बड़ी मंजिल की ओर छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। राइट? छोटे कदम ही हम जो ये छोटे छोटे कदम चलेंगे ना, जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूं, जो बातें आपके अपलायंस आपको बताते होंगे, जो बातें आपके अपने सीनियर लीडर्स आपको बताते होंगे, जो बातें आपको मैनेजमेंट के लोग बताएंगे, जो बातें आपके लीडरशिप बताएगी, वो छोटे छोटे कदम जब आप चलना शुरू करेंगे, तो 100% आने वाले कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपकी मंजिल आ गई है। क्यों? आपको लगता है छोटे छोटे कदम क्या होगा? रोज एक बूंद पानी की टपक रही है, रोज एक पानी की बूंद टपक रही है। निरंतर प्रयास आपको सफल जरूर बना देगा। अगर वो रोज एक बूंद पानी की टपकेगी, तो आप देखेंगे अगले 100 दिन में, अगले 200 दिन में, अगले 1 महीने में, वो जो पानी टपक रहा था, वो एक पूरा का पूरा 10 लीटर का, 1 लीटर का जार भर देगा। राइट? तो हमेशा ध्यान रखिए, सक्सेस डज नॉट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली। ये हमेशा याद रखिए। जो सफलता की हम बात करते हैं ना, कई लोग कहते हैं सर आप सफल हो गए, हम तो सफल नहीं हो पाए। तो हमेशा याद रखिए, सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली। जो काम आप कभी कभी करते हो, ओकेशनल मतलब, ओकेशन मतलब जब कभी कभी कर लिया। जैसे ओकेशन होते हैं ना, आज ओकेशन है हमारे घर में, क्या ओकेशन है? आज बर्थडे है। आज क्या है? बर्थडे साल में एक बार आएगा। कोई शादी है, 2 साल में एक बार आएगी, या महीने में एक बार आएगा कोई काम। ये ऐसा काम नहीं है। वट यू डू कंसिस्टेंटली, जो काम आप कंसिस्टेंटली करोगे। ये जो पानी की बूंद टपक रही है, आज एक बूंद टपक गई, अब 1 साल बाद टपकेगी, या 1 महीने में एक बार क्लोजिंग की डेट आएगी 30 तारीख की, तब टपकेगी, तो कुछ भी नहीं होगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आपके बिजनेस में, आपकी एक्टिविटीज में, आपकी टीम में निरंतरता होगी, माय डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंट मतलब लगातार 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 लगातार, तभी आप सफल आओगे। अदरवाइज सफलता छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ है, जो दिन रात दोहराए जाते हैं। दिन रात जितने ज्यादा आप दोहराएंगे, उतने ज्यादा ये चीज रिपीटेडली होते होते आपको सफल बना देगी। राइट? सफलता का यशस्वी भव तिलक लगाने के लिए मेहनत रूपी तपस्या करनी पड़ती है। जो सफलता का जो हमें अचीवमेंट है ना, उसका तिलक अगर आपको लगाना है, तो जो मेहनत है, उसकी जो तपस्या करनी पड़ेगी आपको, तभी ये सफलता आपके तिलक सिर माथे चढ़ेगी। और भी बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे बातें आप लिख सकते हैं, जो आपको जरूर से जरूर इनको नोट कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मुस्कुराते रहें। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आपको सब लोग अच्छे लगते हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हर कोई आपको अच्छा लगता है। ठीक है? आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति दुख, स्वयं के, ये सारे काम आप कर सकते हैं। कपड़े पहनने का सही तरीका होना चाहिए। प्रत्येक कार्य समय पर करें। हर कार्य को टाइम बाउंड कर लें।
आप अपने सभी काम अप टू डेट रखें, जितने भी आपके काम है सब अप टू डेट रहने चाहिए। अपने काम को की पूरी जानकारी रखें। जो किसी से कहे दो वो पूरा जरूर करो। जो आप कमिटमेंट कर लो किसी से भी वो 100% पूरा करो। किसी भी बुराई या आलोचना से मत डरो। किसी की सहायता करना भी दूसरों की सहायता करना भी सीखिए। अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को भी दीजिए और दूसरों की सच्ची तारीफ जरूर करें। सच्ची तारीफ जरूर करें माय डियर फ्रेंड्स। जितनी ज्यादा आप लोगों की तारीफ करेंगे, सच्ची तारीफ करेंगे, 100% ये बात 12-13 पॉइंट हैं जो आप जरूर से जरूर अगर आप करेंगे 100% आपकी सफलता आपको मिलेगी। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए, यही आपकी उपस्थिति की सार्थकता है। इस 2025 में ये बातें जरूर बना लें कि कहीं आप बैठे हो तो कोई एक व्यक्ति अपने दुख भूल जाए और आपके इस उत्तेजित और उत्साहित और इस खुश मिजाज रूपी कार्य को आपके साथ करने लगे और आप सफल हो जाए। यही हमारे 2025 की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी दोस्तों। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसले हो तो फासला क्या है। कोई फासला दूर नहीं है अगर आपके पास हौसला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको यही बात बताना चाहूंगा। इस 2025 में, इस 365 दिन में हम हौसले को भर लें, पूरी ताकत के साथ में, अपने पूरी एनर्जी के साथ में हम आगे बढ़ें। और इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं 2025 आपका सफल हो। डीएक्शन में आप बहुत ऊंचाई पे जाएं, बहुत सफल हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उत्तम जी। थैंक यू सर। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा आपका। एंड आई होप ये जो नया साल का जो ये आगाज है ये सभी के लिए एक बहुत ही एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे। और हम लोग एक रेजोल्यूशन लेते हैं सर, आपका जो प्रेजेंटेशन है इसके ऊपर हम लोग एक रेजोल्यूशन लेके आगे का हम लोग तय करेंगे जो कैसे हम लोग ये 25 साल को कितना सक्सेसफुली हम रन कर पाए और हम लोग का जो इनकम लेवल है उसको कैसे हम लोग इंक्रीज कर पाए। तो यही चंद शब्द के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ पे, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। और भरत सर का आज का जो सेशन रहे आई होप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और इसी कड़ी में मैं इस मीटिंग को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सभी को, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स जुड़े हुए हैं इस मीटिंग से। एंड आई होप आप इस मीटिंग से आपने एक रेजोल्यूशन लेके आगे आप फील्ड में और आपके टीम के साथ बहुत अच्छा काम करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गो ग्राउंड। थैंक यू।